خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام ناظرین اور حاضرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور کلیسیا کی طرف سے عید قیامت المسیح کی ڈھیروں خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ آئیے ہم کلام خدا کی طرف بڑھیں گے اور میرے ساتھ متی رسول کی انجیل اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے نکالیے گا۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے کلام خدا میں سے پڑھوں گا۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج سنائیں جا کے مزدہ، آج سنائیں جا کے مزدہ ماتمی تقدیر کو، یسوع جی اٹھا ہے توڑ کر موت کی زنجیر کو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، پوری دنیا کے اندر یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جو منایا جاتا ہے، جو نہ اس سے پہلے وجود میں آیا اور نہ اس کے بعد۔ ہسٹری اور تاریخ اور بائبل اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق آج سے 2017 سال پہلے کمواری سے پیدا ہوا۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ آج سے 8 دن پہلے یروشلم میں داخل ہوا۔ کتاب مقدس کے مطابق شاہانہ طور پر اس کا استقبال کیا گیا۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ جمعرات کی شام کو پکڑوایا گیا۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ جمعے کے روز صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور جب اس کو چڑھا دیا گیا تو اس کی قبر پر رومی سلطنت کا پہرا بٹھا دیا گیا اور مہر کر دی گئی کہ اگر کسی بھی شخص نے اس مہر کو توڑا تو پھر اس کو سزائے موت ہو جائے گی۔ رومی سلطنت کا پہرا، سپاہیوں کا پہرا اس قبر کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ ایک بہت بڑا پتھر اس قبر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن
जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और कुछ और औरतें खुशबूदार चीजें लेकर कब्र की तरफ सुबह सवेरे सूरज चढ़ने से पहले जा रही थी, तो वो आपस में परेशान थी कि हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। वो टेंशन में थी, वो परेशानी में थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यीशु मसीह जो कुछ कहता है उसको पूरा करके दिखाता है। उसने कहा आसमान और जमीन टल सकती है, पर मेरे मुंह से निकली हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो आपस में बातें करती हुई जा रही है, और जब पहुंची तो वहां पर उन्होंने एक अजीब माजरा देखा। भूचाल आया और एक अजीब माजरा कि हफ्ते के पहले दिन खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा, उसने पत्थर को लुढ़का दिया और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह बड़ी कुदरत और चाहो जलाल के साथ जिंदा हो गया। आमीन। और उसने कहा ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से कलाम खुदा में कुछ पेशन गोइयां की गई। ज़बूर नंबर 16 में दाऊद कहता है कि वो मेरे मक़दस को सड़ने नहीं देगा। आज तक जितने भी लोग मरे यीशु मसीह के अलावा, और जो यीशु मसीह के साथ कुछ और लोग जिंदा हो गए थे, इससे हटकर जितने भी लोग मरे उनको कीड़े खा जाते हैं, स्यों खा जाती है, मट्टी खा जाती है, लेकिन यीशु मसीह के बदन को मट्टी ने नहीं छुआ, किसी कीड़े ने नहीं छुआ। और इसलिए दाऊद कह रहा है वो मेरे मक़दस को ना सड़ने देगा, वो सड़ने की नौबत तक नहीं आने देगा। और अगर हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब मेरे साथ निकालिए जल्दी से, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी अगर हम 21वें आयत को पढ़े तो लिखा है उस वक्त से यीशु अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा, उनको बताने लगा कि जरूर है कि यरूशलेम को हो जाए और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और यही पेशन गोई एक और जगह पर यीशु मसीह ने की। 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत में भी यीशु मसीह ने एक पेशन गोई की अपने ताल्लुक से, अपने बारे में। और क्या है 17 आयत में, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शिगिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार कहनों और फकीरों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक और जगह पर फकीरों और फरीसियों को कहा कि तुम इस मक़दस को ढा दो, मैं तीसरे दिन के बाद फिर इसको खड़ा कर लूंगा। वो हैरान है, वो परेशान है कि 46 सालों में ये हैकल सुलेमान ने तैयार की है, हमारे बाप दादा ने तैयार करवाई है, ये कैसी बातें करता है। लेकिन यीशु मसीह अपने बदन के ताल्लुक से कह रहा था कि तुम इसे मसलूब कर दो, तुम इसे कोड़े मारो, ठट्ठों में रहो, इसको कत्ल कर दो, लेकिन मैं तीसरे दिन बाद फिर इसको खड़ा कर दूंगा। और वो उसने अपने बदन की बाबत कहा था। और फिर अगर हम अमाल की किताब उसके पहले बात को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह मरकर जिंदा होने के बाद लिखा है 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आता रहा और उन्हें आसमान की बादशाही के ताल्लुक से कहता रहा। और उसने कहा मैं जाता हूं आसमान पर, तुम यहां पर दुआ में ठहरे रहना जब तक आलम बाला
जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। उस वक्त तमाम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गया तो सुनिए, फिर उसके बाद पहली खुशखबरी जो है औरतों ने सुनाई है। किन्होंने सुनाई है? औरतों ने सुनाई है। औरतें गई, शागिर्द सोए हुए हैं, उन्होंने जाकर नॉक किए दरवाजे और उनको जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। और फिर उसके बाद दूसरी खुशखबरी किन्होंने सुनाई है? कोई बताएगा? किन्होंने सुनाई दूसरी खुशखबरी? उसके बाद किन्होंने सुनाई? उस वक्त मेरे साथ देखिए, आज आपके ये बात भी सिखाना चाहता हूं। खुशखबरी उन्होंने भी सुनाई जो पहरा दे रहे थे। हालेलुया। खुशखबरी उन्होंने भी सुनाई। बेशक बाद में रिश्वत लेने की वजह से उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने इस बात को अपने तक ही महदूद रखा, या फकीरों और फरिश्तों तक ही महदूद रखा। लेकिन खुशखबरी उन्होंने भी सुनाई, उन्होंने भी गवाही दी। और गवाही का मतलब है आंखों देखा हाल बयान करना। जो कुछ उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि वाकई ही पत्थर जो है वो लुढ़क गया है। कोई रात को चुराने के लिए नहीं आया, बस खुदा का फरिश्ता आसमान से आया और उसकी सूरत बिजली की सी थी। और जब वो आया तो हम अदमुआ से होकर जमीन पर गिर गए। और उसके बाद उसने पत्थर को लुढ़का दिया और यीशु मसीह जिंदा हो गया, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। दूसरी खुशखबरी पहरादार जो है लोग थे, सिपाही जो थे, उन्होंने दी। मेरे साथ पढ़िए मत्ती की इंजील और उसका आखिरी बाब 28वां बाब मेरे साथ जरा देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा। 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कहनों से बयान किया। हालेलुया। उन्होंने वो सारा माजरा, वो जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि यीशु की कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है, उन्होंने आकर पूरे शहर में इस बात की मुनादी कर दी। आमीन। खुद ही वो मुनादी कर रहे हैं। मुझे यहां पर एक बात याद आ रही है, बलाम की गदी की। खुदा तो गधों को बुलवा देता है। जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आ जाती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। वो गैरों से भी अपना काम ले लेता है, वो अपने दुश्मनों से भी अपना काम ले लेता है। आमीन। यहां पर लिखा है, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कानों तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। सच्चाई का उनको भी पता चल गया। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह फियल वाक्या, फियल हकीकत, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हकीकत का उनको भी पता चल गया, सच्चाई का उनको भी पता चल गया, लेकिन उन्होंने सच्चाई को दबा दिया। उनके अंदर खौफ था कि कहीं हम कत्ल ना हो जाएं, कहीं हम मारे ना जाएं। और नंबर 2, उन्होंने रिश्वत जो है उसको ले लिया। पैसे की वजह से, लालच की वजह से उन्होंने खुशखबरी तो सुनाई लेकिन महदूद तरीके से सुनाई। पर यीशु ने कहा, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। सिर्फ महदूद हद तक नहीं बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। तुम्हारे अंदर कोई खौफ नहीं होगा। हालेलुया। पतरस ने पहली दफा खुशखबरी सुनाई, 3000 लोगों ने तौबा की और मसीह को कबूल किया। उसके अंदर खौफ नहीं, वो उल्टी सलीब चढ़ गया, लेकिन उसने सच्चाई को दबाया नहीं। आज बहुत सारे लोग रुपया लेकर, सहूलियत लेकर, बना बनाया चर्च लेकर, बनी बनाई कलीसियाएं लेकर, बने बनाए पास्टर हाउस लेकर, कारें, कोठियां, बंगले लेकर सच्चाई के कलाम को दबा देते हैं। लेकिन सुनिए, पौलुस ये कहता है और खुदा का बंदा ये कहता है कि हम जो उस्ताद हैं, हम
کر اگر ہم سچائی کے کلام کو دبا دیتے ہیں، سچائی کو ظاہر نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں پہلی عدالت ایسے لوگوں کی ہوگی، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ رہائی نہیں پائیں گے، ایسے لوگوں کو سزا ملے گی۔ جیسے وہ توڑوں کی مثال آپ کو یاد ہے، ایک کو 2 دیے اس نے 5 کمائے، اور ایک کو 5 دیے اس نے 10 کمائے، اور ایک کو 1 ہی دیا تو اس نے کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ تو کیا مالک اس سے خوش ہوا؟ اگر آج سچائی کا پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ سچائی یہ ہے، خدا کا کلام 66 کتابیں سچائی ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ جھوٹ ہے، چونکہ مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس نبوت کی کتاب میں سے بڑھائے گا اور گھٹائے گا، کلام کے اندر جو آفتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس پر نازل ہوں گی۔ سچائی کا کلام 66 کتابیں ہیں، سچائی کا کلام توبہ ہے، پانی کا بپتسمہ ہے، روح القدس ہے، غیر زبانیں ہیں، روح کی 9 نعمتیں ہیں، 5 خدمات ہیں، اور یہ سارا سچائی کا خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اگر کوئی چھپاتا ہے تو کیا وہ اچھا کر رہا ہے؟ نہیں اچھا کر رہا۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ سچائی کو چھپا رہے ہیں، لیکن ہم نے سچائی کو نہیں چھپانا۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ پہلا کرنتھیوں میرے ساتھ نکال لیجئے اور دیکھیے کہ پالوس رسول جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح جب یہ شخص دمشق کی راہ کو جا رہا تھا تو یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا، سب سے آخر پالوس پر ظاہر ہوا، اور اس نے اس کے ساتھ باتیں کی اور کہا، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں خداوند ہوں، تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو بات وہی کرتا ہے نا جو زندہ ہوتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ پروف دیتا ہے، ثبوت دیتا ہے کہ یسوع مسیح مر کر زندہ ہونے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ باپ کی دائیں طرف جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اسٹیفنس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو خدا باپ کی دائیں طرف کھڑے دیکھتا ہوں۔ آمین۔ 15واں باب میرے ساتھ نکال لیجئے اور اس کی 30 آیت سے ذرا پڑھیے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی ہے جو مجھے خداوند سے پہنچی ہے۔ ہاللویا۔ کہاں سے پہنچی ہے؟ پالوس بات میں آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے، وہ خوشخبری جو مجھے خدا کی طرف سے پہنچی ہے وہ میں نے تم تک بھی پہنچا دی ہے، جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، ہاللویا، ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور لکھا ہے اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ فرشتے نے کہا، ڈرو مت، میں جانتا ہوں کہ تم یسوع ناصری کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ ڈرو مت، پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، چونکہ اب وہ یہاں پر نہیں، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آمین۔ سو یہاں پر لکھا ہے، غور سے ذرا سنیے، اور کیفا کو اور اس کے بعد 12 شاگردوں کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، اور پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش دکھائی دیا۔ سب سے پیچھے، سب سے آخر میں، سب سے بعد میں وہ کہتا ہے یسوع مسیح مجھ کو دکھائی دیا، اس نے میرے ساتھ بات کی، اور صرف بات ہی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ بات چیت ہونے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ پہلے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب میں لوگوں کو بچاتا ہوں۔ آمین، پریز گاڈ۔ سو آگے ہم بڑھیں گے، 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ ہمیں منادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں منادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کلام سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ لیکن 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللویا۔
और जो सो गए हैं उनमें पहला फल, जो सो गए हैं उनमें पहला फल। जी तो और भी उठे, लिखा है कब्रें फट गई, कब्रें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, और भी जो इब्लीस के कैद में थे उनको भी यीशु मसीह ने जिंदा कर लिया। सिर्फ यीशु ही की कब्र खाली नहीं, पर पहले यीशु मसीह जिंदा हुआ है और फिर उसने बाकियों को जिंदा किया है। और अब भी उसका यही मकसद है, उसका यही टारगेट है, उसका यही प्लान है कि हम भी जिंदा हो जाएं। हम जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, हम जो सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद, लेकिन उसको कबूल करने की वजह से, उस पर ईमान लाने की वजह से हम भी जिंदा हो सकते हैं। अगर आज हम उस पर ईमान ले आए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आगे भी लिखा हुआ है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। हालेलुया। और क़यामत का मतलब है जी उठना, मुर्दों में से जी उठना। और आज हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हकीकत में जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। मेरे साथ जरा एक हवाला निकालिए, पहला करंथियों उसका 5वां बाब, पहला करंथियों उसका 5वां बाब जरा निकालिए मेरे साथ, और उसकी 8वीं आयत जरा मेरे साथ देखिए। 5वां बाब और 8वीं आयत। अब यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। हम ईद मनाते हैं, हर साल हम ईद मनाते हैं, हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, हम बाजारों को सजाते हैं, हम घरों को सजाते हैं, चर्चेस को सजाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें ईद मनानी कैसे चाहिए? आज के लोग कैसे ईद मना रहे होंगे? बड़ा गोश्त बनाकर फोन कर रहे होंगे दोस्तों को, आ जाओ आज मैं इतने शापर लेकर आया हूं, मेरे साथ ईद मनाओ। ऐसे है ना, क्योंकि आज बड़े वाला गोश्त बना है, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आज ईद है। आज क्या है? ईद है। तो इसलिए हमें खुशी मनाना चाहिए। किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पर कोई जो है वो ना आ सके, पुलिस को ना पता चले, ओ हम ईद मनाते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या ऐसी ईद खुदा को पसंद है? क्यों जी? नहीं। खावाना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ खाने ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना एक भी गिरा। वो कहता एक नवाला भी मैं उनमें से नहीं खाऊंगा। खुदा चाहता है कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं, क्योंकि खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए हैं। तेनू चंगिया चीजा नाल ओ है रजांदा। खुदा चाहता है हम अच्छे अच्छे खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने, घरों को सजाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है हम अपने दिल को भी साफ करें। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा है पहला करंथियों 5वां बाब 8वीं आयत, बस आओ हम ईद करें। पौलुस कहता है बस आओ हम ईद करें। और ईद का मतलब है आओ हम मसीह कि ईद क़यामतुल मसीह में शामिल हो जाएं। आओ हम मसीह की खुशी के साथ, उसकी फतह के साथ हम शामिल हो जाएं। आओ हम ईद करें, ईस्टर नहीं करें। ईस्टर एक देवी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं ईस्टर मुबारक हो। ईस्टर एक देवी थी जिसकी पूजा पाठ की जाती थी। इसलिए जब भी आपने कहना, तो किसी को भी कहना, तो आपने कहना है ईद क़यामतुल मसीह आपको मुबारक हो। कहीं भी बाइबल में लफ्ज़ ईस्टर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक देवी थी जिसकी पूजा की जाती थी। लेकिन आप क्या मना रहे हैं? ईद मना रहे हैं। यहां पौलुस ये नहीं कह रहा कि ईस्टर मनाएं, वो कह रहा ओ हम ईद मनाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो दावा दे रहा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हमारे गुनाहों की माफी हो चुकी है, हमारी निजात का बंदोबस्त हो चुका है, हमारी सुलह बाप के साथ हो चुकी है, हमें नया लिबास मिल चुका है, हमारे नाम किताब हयात में लिखे जा चुके हैं। इसलिए आओ हम
عید منائیں چونکہ اس نے ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا ہے. اس لیے آؤ میرے ساتھ مل کر عید مناؤ, میرے ساتھ مل کر خوشی کرو. ہاللیلویہ. لکھا ہے آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے اور نہ ہی بدی اور شرارت کے خمیر سے. آؤ ہم عید کریں پر پرانے خمیر سے نہیں, پرانی زندگی سے نہیں, پرانے چال چلن سے نہیں, پرانی گفتگو سے نہیں, وہ پرانا جو کھانا پینا اس سے نہیں, بلکہ نئی زندگی کے ساتھ. ہاللیلویہ. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی اور وہ کیا ہو گئی؟ سب نئی ہو گئی. آمین. آؤ ہم عید کریں لیکن پرانے خمیر سے نہیں, چونکہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. اپنا پرانا خمیر نکال کر ہم نیا جو ہے وہ اس کو لے لیں, نئی زندگی کو پہن لیں, نئی انسانیت کو پہن لیں. آؤ ہم عید کریں. آگے لکھا ہے نہ بدی اور نہ شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی سے. ہاللیلویہ. صاف دل سے, اندر سے, صرف اوپر سے صاف کپڑے پہن کر نہیں. کپڑے صاف پہننا بری بات نہیں, اچھی بات ہے. آپ شہزادے ہیں, آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں. آمین. آپ شہزادے ہیں, آپ شہزادیاں ہیں, آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے آپ کو صاف کپڑے, نیٹ اینڈ کلین کپڑے آپ کو پہننے چاہیے, نئے کپڑے آپ کو پہننے چاہیے, نئے شوز آپ کو پہننے چاہیے, اچھے کھانے کھانے چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے آؤ ہم عید کریں صاف دلی سے. آمین. ہاللیلویہ. صاف دلی سے اور سچائی کی بے کمیر روٹی سے. سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح سچائی ہے, اور اس نے کہا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کر دے گی. سچائی کے ساتھ عید منائیں, یسوع مسیح کے ساتھ عید منائیں, اور نہ صرف سال کے بعد عید منائیں. اگر یسوع آپ کے اندر ہے, آپ کے دل میں ہے, تو ہر وقت آپ کی عید ہے. اگر روح کا پھل خوشی آپ کے اندر ہے تو ہر وقت آپ خوش ہیں, آپ کی عید ہے. آمین. پچھلے سنڈے میں نے کلام سنایا تھا اے دخترے یروشلم خوب للکار اور خوشی کے نعرے مار, نغمہ سنائی کر, چونکہ تیری سزا کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آؤ ہم عید منائیں یسوع مسیح کے ساتھ مل کر, اپنی زندگی کو اس کو دے کر, اس کے سپرد کر کے, اس کے انڈر کر کے, اس کے تابع کر کے, نئی انسانیت پہن کر آؤ ہم عید منائیں. اپنے آپ کو بدل کر آؤ ہم عید منائیں. ہاللیلویہ. اب سوال یہ ہے کہ کون سی عیدیں ہیں جو خداوند کو پسند نہیں؟ میرے ساتھ نکالیے, آخری حوالہ ہے یسایا کی کتاب, اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکال لیجیے کہ کون سی عیدیں ہیں جو خداوند کو پسند نہیں ہیں, اور کون سے لوگ ہیں جو خداوند کو پسند نہیں. وہ عیدوں تو مناتے ہیں, وہ بڑے بڑے ہدیے بھی دیتے ہیں, وہ بکرے بھی دیتے ہیں, وہ چھترے بھی دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کا تو یہ ایوان ہے کہ ہم دیکھیں دیں گے خدا کے نام سے تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور اگلے پھر کریں گے تو پھر ایک اور دے دیں گے, پچھلا سال تب برابر پھر نہ ہو. ایسے ہی ہے نا. لیکن سنیے آج کلام کیا کہتا ہے. یسایا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اے سدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو, اے عمورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کام لگاؤ. آپ سب اس واقعہ کو جانتے ہیں, سدوم اور عمورہ کو خدا نے آگ اور گندک سے ہلاک کیا چونکہ ان کا چال چلن درست نہیں تھا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام, میں مینڈوں کی سوکھتی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں.
मुझे नफरत है, मैं परेशान हूं, मैं हराम हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं, मेरी कोई खुशी नहीं। तुम बकरों की, मेढ़ों की, छकलों की, बैलों की कुर्बानियां हर साल गुजरानते हो मुझे खुश करने के लिए। जैसे सोन मोटे मोटे जानवर ले आया, ताकि अगर शमूएल उससे पूछे तो वो कहे कि मैं तो शौक की कुर्बानी चढ़ाने के लिए लेकर आया हूं। पर खुदा ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या खुदा शौक की कुर्बानियों से इतना ही खुश है जितना इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए? हालेलुया। आज खुदा उस वक्त हमारी ईद से खुश होगा जब हम मसीह को खुश करेंगे, जब हम खुदा को खुश करेंगे, जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। और कलाम में लिखा, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। और हिज्जी की किताब में लिखा है, पहाड़ों से लकड़ी लाकर मेरा घर तमीर करो ताकि यहां पर मेरी तमजीद हो। रब्बुल फवाज फरमाता है, इससे मैं खुश हूंगा। जब आप उसके घर को बनाने के लिए हिस्सा डाल के दायके देते, हदिये देते हैं और आप उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, तो फिर आपका खुदावंद आपसे खुश होता है। वो चाहता है कि आप वो रुपया पैसा अच्छी जगह पर अपना बीज बोए ताकि वहां से आपको बरकत भी मिले। सो लिखा है, जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो, आइंदा को बातल हदिये ना लाना। ये खुदा की जुर्म में सब कुछ बातल है, झूठे हदिये है। अगर हमारी जिंदगी दुरुस्त नहीं तो खुदा हमारे हदियों को देकर वो खुश नहीं है। आगे लिखा है, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। अगर जिंदगी बदकदार है, गलत है, आप खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहे हैं और ईद भी मना रहे हैं, ठीक है, तो फिर खुदा आपसे खुश है नहीं। आगे लिखा है, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। जो मुकर्रा ईदें हम हर साल मनाते हैं वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को ना सुनूंगा। आई लोग कहते हैं सारी जिंदगी हमें होती है, फला हमने खुदा चीज खुदा से मांगी थी लेकिन खुदा ने हमें नहीं दी। पाकरू हमने मांगा है खुदा से, अभी तक खुदा ने नहीं दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक हमारी जिंदगी दुरुस्त हुई नहीं, अभी तक बदकरदारी जो है हमने अपनी जिंदगी से निकाली ही नहीं। इस वजह से खुदा कहता है, तुम दुआ पर दुआ करोगे पर मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। तुम्हारे हाथ क्या है? तो क्या खुदा ऐसे लोगों के हदियों को और इधर उधर की बातों को कबूल करेगा? मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स शराब बेचता है, शराब निकालता है और कहता है कि मैं तो पूरी दायकी भी दे रहा हूं अपने कारोबार की, खुदा मुझसे बड़ा खुश होगा। तो कई जगह पादरी ने लालची, वो कहते खुदा इनको और ज्यादा बरकत है, इनके कारोबार को और ज्यादा बरकत है। मना नहीं उन्होंने करना, मना हो गई तो दायकी भी बंद हो जाएगी गलत कारोबार वाली। ऐसे ही है। तो सुनिए, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और उनकी दुआ भी खुदा की जुर्म में नहीं पहुंच चुके। उनके हाथ जो है वो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। यीशु का खून इसीलिए बहाया गया है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं और तुम बीमारियों से भी शिफा पाओ। अपने आप को पाक करो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। उसकी आंखें इतनी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से ना हटाओ। अद्धे के लोग सुन नहीं रहे, मुझे पता है, मैं जान के गलत बोले। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से ना हटाओ। अच्छा हटा दो, सही है, एनजी लिखे। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से हटा दो, दूर करो, क्योंकि मेरी आंखें इतनी पाक हैं कि वो बदी को देख
नहीं सकती। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो कलाम के वसीले से, यीशु के खून के वसीले से, बपतिस्मे के वसीले से, पाक रूह के वसीले से अपने आप को धो, पाक और साफ करो। बदफैली से बाज आओ। अगर बदफैली कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, तर्क कर दो। नेकोकारी सीखो, नेक काम करना सीखो। इंसाफ के तालिब हो। अगर किसी से बेइंसाफी कर रहे हो तो क्या करो? इंसाफ के तालिब हो। मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवों के हामी हो। हालेलुया। बेवों के तल्लुक से भी फिक्र किया करो। आपको पता है साथ साथ चर्च भी बन रहा है, लेकिन तो भी मुझे जब भी कोई बंदा मिलता है, कोई ऐसी पार्टी मिलती है जो बेवा औरतों की मदद करती हो, तो मैं दिन रात एक करके बेवा औरतों को राशन दिलवा देता हूं। और सुनिएगा, इस गांव के अंदर 9 ऐसी बेवा औरतें हैं जिनके मैंने नाम लिखवाए, और कईयों को भैंसें मिली और कईयों को जो है वो और भी जानवर जो है वो मिले हैं। इसलिए जब हम बेवाओं की फिक्र करेंगे, यतीमों की फिक्र करेंगे, तो खुदा हमारी फिक्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारी दुआ आसमान के दरीचों को तोड़कर, चीरकर वो खुदावंद के पास पहुंच जाएगी, और हमारा खुदा महजूज होगा, खुश होगा, और हमें आसमान के दरीचों को खोलकर हम सबको बरकत देगा। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।